हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा 18th क्विज क्लास है और आज हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन ओलिगोपोली मार्केट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्या है? ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट बेसिकली यहाँ पर द प्रोडक्ट्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएटेड, मतलब प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड ना भी हो सकते हैं। What matters is that there are only few firms for most or all of total production. तो दो important point है, in some oligopolistic market, some or all firms earn substantial profits over the long run because barriers to entry make it difficult or impossible for new firms to enter. तो क्या है, यहाँ पर few sellers होते हैं oligopoly market में, okay? और एक और characteristics है barriers टू एंट्री। ठीक है, तो इसके कारण जो एग्जिस्टिंग फर्म्स होते हैं वो एग्जिस्टिंग फर्म्स ड्यू टू दिस बैरियर टू एंट्री क्राइटेरिया दे अर्न सब्सटैंशियल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ओके, तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट्स का एग्जांपल है ऑटोमोबाइल, steel, aluminium, petrochemicals, electrical equipment, computers, etc. Okay? So basically the first characteristics is few firms, group behavior, क्योंकि there are few firms so there is a tendency of interdependence among them, क्योंकि ओलिगोपोली का equilibrium condition depend करते हैं on how its competitors are how they are behaving, okay, how they are setting the price and quantity. Okay, so competitors का behavior के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। So interdependence, it is a real world situation, और यहाँ पर एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट भी इंक्लूडेड होते हैं। I have explained what is advertising and selling cost in the previous video. Okay, so equilibrium, oligopolistic market का जो equilibrium condition है, यहाँ पर a firm they set price or output based on strategic considerations regarding the behavior of its competitors. So वो लोग एक strategic behavior या strategic decision लेते हैं based on the behavior of the competitors in the market. Other competitors जो है उसका एक firm है, say there are 5 firms. Okay, or say for example there are 2 firms, I'm not 5, make it simple. Okay, तो दोनों firms है, तो इस firm का price और quantity determined होते हैं based on how this firm is setting their price and quantity. Okay, तो Nash equilibrium जो होते हैं, each firm is doing the best it can given what its competitors are doing. Okay, so अगर हम 2 firms लेते हैं A और B, A is doing the best given its competitors, price and quantity. Okay, fine. So basically oligopolistic market में firm price और output set करते हैं on the basis of the strategic decisions, which again depends on what its competitors are doing. Okay, so firm's behavior under oligopoly जो है based on the objective of the firm, the magnitude of the barriers to entry, क्योंकि ये एक बहुत important criteria है barriers to entry, तो magnitude मतलब कितना barriers या कितना restrictions है उस market में entry करने के लिए नए firms को। तो and the nature of government regulation also, there are different possible outcomes in relation to the firm's behavior under oligopoly. तो ये है तीनों outcome, एक है stable price, दूसरा है price war और तीसरा है collusion for higher prices. Okay, further oligopoly can either be collusive or non-collusive. Collusive oligopoly is a market situation wherein the firm cooperates with each other in determining price and output or both. तो यहाँ पर जो say for example firms है A और B, तो वो लोग cooperate करते हैं एक दूसरे से to determine the price and quantity. Okay, whereas a non-collusive oligopoly एक market situation है जहाँ पर firm compete करते हैं, यहाँ पर A and B, A versus B हो जाएगा।
फाइन, ये है नॉन कोल्यूसिव सिचुएशन रादर देन कोऑपरेटिंग. ओके, तो नेक्स्ट है, तो ये है नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली, जो कि स्वीजीज किंग डिमांड कर्व के कंसेप्ट, कर्व मॉडल के कंसेप्ट के ऊपर है, प्राइस रिजिडिटी. सो यूजुअली इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर आर मेनी प्राइस रिजिडिटीज. Okay, in 1939, Paul Sweezy used an unconventional demand curve, the kinked demand curve, to explain these rigidities. तो हम price rigidity explain करते हैं based with the help of a kinked demand curve. Okay, so reason for the kink in the demand curve, it is assumed that firms behave in a twofold manner in reaction to the price change by the rival firm. firm A है, firm B है, ठीक है. तो प्राइस अगर चेंज होता है ऑफ फर्म बी, हाउ विल फर्म ए रिएक्ट टू इट, फर्म ए कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है. सो इन सिंपल वर्ड्स, फर्म फॉलो प्राइस कट्स बाय अ राइवल कंपनी बट डज नॉट फॉलो प्राइस इंक्रीज. मतलब अगर प्राइस ऑफ फर्म बी डिक्रीज होता है तो प्राइस ऑफ फर्म ए भी डिक्रीज होता है, ठीक है. लेकिन अगर प्राइस ऑफ फर्म बी इंक्रीज होता है तब फर्म ए बी को नहीं फॉलो करते हैं. ओके, तो जब प्राइस फॉल होता है तभी फर्म ए फर्म बी को फॉलो करेगा, ठीक है. सो इफ अ सेलर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, हिज राइवल डू नॉट फॉलो द प्राइस इंक्रीज. प्राइस इंक्रीज इज नॉट फॉलोड, ठीक है. Therefore, the market share of a firm, जो फर्म का, जो इंडिविजुअल फर्म का जो मार्केट शेयर है वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस राइज, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ द सेलर रिड्यूसेस द प्राइस, अगर वो प्राइस अगर डिक्रीज करते हैं, देन द राइवल विल ऑल्सो रिड्यूस देयर प्राइस टू ब्रिंग द प्राइस एट पार, क्योंकि प्राइस डिक्रीज से ही वो रिएक्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर प्राइस भी इंक्रीज हो गया है, तो अगर प्राइस ए अगर वो डिक्रीज कर देते हैं फर्म ए, तो राइवल फर्म भी तो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे ना, प्राइस रिड्यूस करेंगे. सो दिस एंश्योर्स दैट दे प्रिवेंट देयर मार्केट शेयर फ्रॉम फॉलिंग. बेसिकली ए और बी जितना इसका 50% अगर शेयर हो और इसका अगर 50% मार्केट शेयर हो, तो ये दे विल ट्राई टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर, वो ये डिक्रीज नहीं होने देंगे. 40% या 30% मार्केट शेयर डिक्रीज नहीं होने देंगे. दैट इज देयर ऑब्जेक्टिव. दैट्स व्हाई दे रिएक्ट टू देयर कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स प्राइस अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, या डिक्रीज कर रहे हैं तो वैसे वो रिएक्ट करते हैं, ताकि उसका मार्केट शेयर सेम रहे, ठीक है. Okay, it does not fall basically. Fine. So once the rival firms react, the firm lowering the price first cannot gain from प्राइस कट. तो क्या है कि देखिए फर्म ए और फर्म बी है, फाइन. तो अगर प्राइस ऑफ बी डिक्रीज होता है तो फर्म बी पहले रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर द फर्स्ट रिएक्टर. ओके, तो इसको देख के फर्म ए भी डिक्रीज करेंगे, ज्यादा डिक्रीज करेंगे. तो क्या है कि राइवल जब रिएक्ट करते हैं तो जो फर्म जो पहले प्राइस डिक्रीज करते हैं वो उतना ज्यादा गेन नहीं करते हैं फ्रॉम द प्राइस डिक्रीज या प्राइस कट. ओके, ठीक है. तो ये है किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल, जो कि प्राइस रिजिडिटी को और भी क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं. तो मैंने पहले ही कहा था कि ए और बी ये दोनों फर्म्स है, तो अगर प्राइस ऑफ बी इंक्रीज होता है तो प्राइस ये ए, उसे फर्म ए वो फॉलो नहीं करेंगे. मतलब दोनों फर्म है ए और बी, तो अगर प्राइस ऑफ बी इंक्रीज होता है तो फर्म ए प्राइस इंक्रीज फॉलो नहीं करते हैं. ये दोनों राइवल फर्म्स है, ठीक है. और जब प्राइस ऑफ बी डिक्रीज होते हैं तब फर्म ए फॉलो करेगा फर्म बी को. प्राइस डिक्रीज, वो भी प्राइस डिक्रीज करेगा, ठीक है. तो ये है बेसिक कंसेप्ट. तो क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OP0 जो है, OP0 प्रिवेलिंग प्राइस है, ठीक है. OP0 प्रिवेलिंग प्राइस है. तो अगर प्राइस OP0 से ज्यादा होता है, OP0 से ज्यादा होने से क्या होगा, एनी इंक्रीज इन द प्राइस विल रिड्यूस द सेल. प्राइस इंक्रीज होने से सेल्स रिडक्शन होगा, फाइन. सो क्या होगा, राइवल
firm will not follow that. Okay, fine. तो ये एक सिंगल सेलर का सिचुएशन है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइस इंक्रीज राइवल फर्म फॉलो नहीं करेगा. और ये जो केपी जो है, केपी बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इलास्टिक पोर्शन ऑफ द किंग्ड डिमांड कर्व. ओके, फाइन. और जो के ए है, के ए ये मार्जिनल रेवेन्यू रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है पॉजिटिव. तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब इंक्रीज होता है, इट विल रिड्यूस टोटल सेल्स प्लस टोटल रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट. ओके, सो दिस इज द प्राइस इंक्रीज सिचुएशन. ओके, यहां पर हम जानते हैं केपीडी इज द किंग डिमांड कर्व. अब जब प्राइस डिक्रीज होता है, दैट इज प्राइस बिलो OP0 जो कि प्रिवेलिंग प्राइस है, तो राइवल तब प्राइस रिड्यूस करेगा. राइवल विल फॉलो दैट. ओके, दे विल फॉलो दैट. सो प्राइस बिलो दिस prevailing price, rivals are going to follow that. तो ये this portion represents the next part of the king demand curve, which is less elastic in nature. Okay, so he will increase his sales, his profit would be less than before. क्योंकि देखिए PD तो किंग डिमांड कर्व का पोर्शन है, P लेस इलास्टिक है, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, उसका करस्पॉन्डिंग मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव, द पोर्शन बिलो R. ओके, फाइन. Thus, in both price raising and price reducing situation, the seller will be a loser. Fine. So, in both price raising and price reducing situation, the seller will be a loser. Okay, fine. So he would stick to the prevailing price, that is OP0. मतलब price remains rigid. Okay, fine. Okay. Next है collusive oligopoly. So sometimes the firms may try to remove uncertainty. तो पहला था non-collusive oligopoly where two firms were considered to be rivals. Okay. अब हम discuss करेंगे collusive oligopoly. तो firms may try to remove uncertainty. तो वो uncertainty को remove करना चाहते हैं related to acting independently. तो दोनों firms A और B जब independently वो काम कर रहे हैं तो एक rivalry काम करेगा और अनसर्टेन एनवायरमेंट में वो काम करेगा, उसका मार्केट शेयर रिड्यूस्ड हो सकते हैं. इसलिए वो अनसर्टेनिटी को वो रिमूव अगर करना चाहते हैं तो दे एंटर इनटू अ प्राइस अग्रीमेंट विद ईच अदर. वो एक दूसरे से एक प्राइस अग्रीमेंट में ज्वाइन करते हैं. इसको हम कोल्यूजन कहते हैं. मतलब A प्लस B हो जाएगा, वो एक सिंगल फर्म हो जाएगा, मतलब कल्यूट करते हैं वो लोग. ठीक है, एक दूसरे से राइवल नहीं होते हैं. सो कल्यूजन इज आइदर फॉर्मल, ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ कार्टेल और प्राइस लीडरशिप. तो कार्टेल का मतलब क्या है? कार्टेल इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स within the same industry which follow common policies relating to price, output, sale, profit maximization, distribution of product. तो independent A, B, C, D ये सब independent firms है जो कि सेम इंडस्ट्री का है. लाइक फॉर एग्जाम्पल फोन मेकिंग इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, या ऑयल इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल. तो डिफरेंट फर्म्स है, वो लोग एक साथ ये सब इंडिविजुअल फर्म्स ये मर्ज करते हैं. ठीक है, तो जब ये मर्ज करते हैं एंड दे फॉलो सम कॉमन पॉलिसीज बेसिकली, they try to follow some common policies regarding price, output, sale, profit maximization, etc. So that is something, and so that is a kind of association of individual firms. Cartel का एक अच्छा example अगर हो तो OPEC एक is a good example of
cartels, because OPEC का full form है Organization of Petroleum Exporting Industry. Okay, so this is what OPEC is. So it is one of the most well-known international cartel. So यहाँ पर जो OPEC members है वो regularly meet करते हैं to decide कितना oil वो each member of the cartel वो कितना oil produce करेगा. So that is a example of cartel. And next is price leadership. Price leadership is based on informed collusion. तो ये informed collusion है. So under price leadership, one firm is large and dominant firm. Okay, so एक larger firm है और एक है जो इस firm के instructions के अनुसार like acts as a leader, जो एक और firm follow करते हैं, who fixes the price of the product while other firm allow it या follow करते हैं, follows it. Okay, fine. So एक larger firm है, for example B, और rest of the firms they follow the other firm. So यहाँ पर leader और follower का concept exist करती है. ठीक है? So this is collusive oligopoly. Fine now? Okay. So now we can move on to the question answers. Okay? ओके तो पहला जो क्वेश्चन है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन अ फर्म फेसेस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, फर्म्स टेंड टू बी इंटरडिपेंडेंट, when only a few firms dominate the market, when the firm faces both elastic and inelastic demand curve. तो मैं जब किंग्स डिमांड कर्व एक्सप्लेन कर रही थी तो ऑप्शन डी वाज वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दैट इट फेसेस बोथ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड कर्व, सो प्राइस रिजिडिटी एग्जिस्ट करते हैं. एंड देन वी नो दैट फर्म्स टेंड टू बी इंटरडिपेंडेंट, फ्यू फर्म्स डोमिनेट इन द मार्केट, तो ये ऑप्शन ए होगा. यस, ऑप्शन ए. ओके, next question, which of the following statement is true for both monopolistically competitive and oligopolistic industry? तो option A है, it is impossible for new firms to enter the industry. Collusion and creation of cartels is common. Producers cannot benefit from knowing other firms' plan, and firms have some degree of control over prices. तो इसका आंसर होगा option D. Firm have some degree of control over prices. Oligopoly में भी था, monopolistic में भी था. बाकी के जो firm जो conditions है, it's not very much similar to that of monopolistic when we compare with oligopolistic industries. Okay. Next है, which of the following best describes an oligopoly? Option A, many monopolistically competitive firms. Option B, a few firms sharing monopoly power. A former monopoly that has been broken up by the government. A government granted franchise or monopoly. Option B, few firms sharing monopoly power. Okay. Next question है, collusion are most frequently occurs in industry. Collusion किस टाइप ऑफ इंडस्ट्री में दिखा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओलिगोपोलिस्टिक. क्वाइट ऑब्वियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फ्यू फर्म शेयर मोस्ट ऑफ एन एंटायर इंडस्ट्रीज रेवेन्यू, द मार्केट स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली. ऑप्शन ए, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव. ऑप्शन बी, ओलिगोपोली. ऑप्शन सी, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव. एंड ऑप्शन डी, मोनोपोली. इसका आंसर ओलिगोपोली डेफिनेटली होगा क्योंकि दे हैव मेंशन्ड few firms over here. Few firms. Okay, so this is going to be oligopoly. Next question है, collusive oligopoly can occur in the following ways. तो ये तो मैंने discuss किए हैं. So it is going to be option C, both cartel and price leadership. Question number 7, a situation of Nash equilibrium in a market with two firms only can be simplified as option A, consumers pay a fair price for goods sold by oligopolist. Okay, next है, when MC is equal to MR. Option C, when a position is reached when any change in strategy would leave a
player or firm worse off, and option D ये है, last is here C लिखा है यहाँ पर, लास्ट ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी है when a high price is reached by firms who are colluding. ओके, सो देखिए Nash equilibrium क्या होता है. We are assuming another player, in this case firm, is playing their best strategy. Okay, तो जो other firm या player है, they are playing their best strategy. Okay, so Nash equilibrium, I'm writing it as any, हमें मिलता है when any change in strategy would leave a player worse off. Would leave a player worse off मतलब क्या है कि एक प्लेयर देखिए, एक सिंगल प्लेयर या कोई फर्म ए या बी, ओके, टू फर्म्स आर देयर ए और बी, तो ये दोनों अपना बेस्ट स्ट्रैटेजी खेल रहा है. ठीक है, तो अगर ए उसका स्ट्रैटेजी अगर चेंज करता है तो उसका स्ट्रैटेजी चेंज करने अगर वो करेंगे तो ए वर्स ऑफ हो जाएगा. ओके, so this is quite obviously going to be option C. So when a position is reached when any change in strategy would leave a player or firm worse off. Question number 8 है लिमिट प्राइसिंग के ऊपर. तो लिमिट प्राइसिंग क्या होते हैं? देखिए, लिमिट प्राइसिंग इज सेटिंग अ प्राइस विच इज जस्ट, देखिए लिमिट प्राइसिंग हम कहते हैं इसको हम एंट्री फोरस्टॉलिंग भी कहते हैं. दिस इज अनदर नेम फॉर लिमिट प्राइसिंग एंड ये एक क्लियर क्लू देता है. इट गिव्स अ क्लियर क्लू दैट it is dropping the price, it is dropping the price to a level which makes it difficult or impossible for any new firm to enter. तो एक ऐसा प्राइस सेट करता है जो नए फर्म को मार्केट में एंटर करना अलाउ नहीं करते हैं या इम्पॉसिबल हो जाते हैं एक नए फर्म को एंटर करना मार्केट के लिए. सो दिस मे मीन बेसिकली ड्रॉपिंग द प्राइस just below the average variable cost. So it may mean to drop the price just below average variable cost, right, of the potential entrant, ठीक है. सो अगर एंट्रेंट उसका वेरिएबल कॉस्ट अगर कवर नहीं कर पाते तो वो तो मार्केट में वो एंटर करेगा विद इन लाइक बाय मेकिंग इंक्रीजिंग लॉसेस, राइट. सो इसलिए लाइक प्राइस ऐसे लिमिटिंग रेट में करना होगा, लिमिटेड लेवल में करना होगा ताकि नए फर्म्स एंटर ना कर पाए. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटर्स द एंट्री इनटू द मार्केट. Okay, so this is option D. Next is question number 9. The oligopolist demand curve is elastic for a price rise. This is because यहाँ पर option A, B, C, D mark नहीं है. ये है option B. In game theory, X represents a Nash equilibrium position. Option B, it prefers non-price competition. Option C, following a price rise, rivals will not follow suit. And option D, following a price rise,
rival must follow the suit. तो यहाँ पर क्या है, elastic for price rise. तो इसका आंसर obviously C होगा, as I've mentioned that at the elastic portion of the demand curve, elastic portion में क्या है, price rise का situation है. तो जब price rise होता है तो क्या होगा, तो जो rival firm है वो price increase follow नहीं करेगा. ठीक है. और जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ऑप्शंस रिटन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंसेस रिप्रेजेंट्स द डिसकंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द ओलिगोपोलिस्ट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. तो ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो डिसकंटिन्यूअस पोर्शन ऑफ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, देखिए यहाँ पर बी है, टिल हियर इट इज पॉजिटिव एंड देन फ्रॉम हियर इट इज, then it reaches to negative. So B और C एक discontinuous portion है, तो ये है option B. This represents the discontinuous portion of marginal revenue curve. So thank you so much for watching the video. Keep watching, keep learning, keep sharing the video if you like it, and stay safe. Okay, and we'll be coming up with more quizzes. So all the best for your preparation. Okay.